Welcome guys, welcome to Onlineopedia. In this video I'll discuss some most important MCQs of power system and the topic is transmission and distribution. This is lesson number 1, so let's start it. So this is my Unacademy ID, you can follow me on Unacademy, and this is our Telegram channel. You can join our Telegram channel for daily quizzes and important contents. Okay, so let's start the video. So this is our first question. The question is the undesirable effect of corona. तो undesirable effect कोरोना का क्या क्या होता है? तो कोरोना की वजह से हमें पावर लॉस भी होता है, हार्मोनिक करंट भी दिखा देता है और रेडियो इंटरफेरेंस भी होता है. तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट होगा. ठीक है, तो द अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ कोरोना आर all 1, 2, 3. Next is the ratio of puncture voltage to the flashover voltage of an insulator is. तो एक्चुअली वो क्या होता है, सेफ्टी फैक्टर होता है. सेफ्टी फैक्टर होता है रेशियो ऑफ पंक्चर वोल्टेज टू द फ्लैशओवर वोल्टेज. दिस इज आवर सेफ्टी फैक्टर फॉर इंसुलेटर. ओके, तो सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ पंक्चर वोल्टेज टू द फ्लैशओवर वोल्टेज फॉर एन इंसुलेटर. ओके, एंड पंक्चर वोल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्लैशओवर वोल्टेज होता है. ठीक है, तो द रेशियो पंक्चर वोल्टेज टू द फ्लैशओवर वोल्टेज ऑफ एन इंसुलेटर क्या होगा, अगर पंक्चर वोल्टेज ज्यादा होगा फ्लैशओवर वोल्टेज से तो वो ग्रेटर देन 1 होगा. ओके ओके, तो फ्लैशओवर वोल्टेज क्या होता है, अगर यहाँ पे एक इंसुलेटर होता लाइक दिस एंड यहाँ पे एक कंडक्टर होता, तो sometime due to some fault the conductor voltage may increases. Okay, so due to increase in voltage the electric field is high around the insulator. Okay, so when the electric field high the air get ionized. Okay, so whenever the air get ionized the air starts to conduct current. Okay, then the current starts to flowing through the air like this. Okay, from the conductor to the body. This is your flashover. Okay, next is advantage of transmitting power at high voltages. Option A is magnitude of current will be small. Option B, power loss will be minimum or power loss will be less. Option C, it will reduce the voltage drop in the line impedance. Option D, all of the above. तो देखते हैं क्या होता है. 3 phase power S is equal to, I can write 3 B phase I phase cos phi in terms of phase voltage and current, or I can write root 3 B line I line cos phi in terms of line voltage. So किसी भी एक ले सकते हैं आप. तो I phase कितना होगा, S by 3 B phase cos phi. ओके, तो ट्रांसमिटिंग पावर एट हाई वोल्टेज, अगर वोल्टेज लेवल आप इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट क्या होगा, कम होगा. तो इफ B phase increases or B line increases therefore I phase or I line decreases. Okay, तो करंट डिक्रीज होगा. तो ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल बी स्मॉल. करेक्ट. अगर करंट स्मॉल होगा तो I स्क्वायर आर लॉस कम होगा, so पावर लॉस विल बी लेस. वो भी करेक्ट है. ऑप्शन सी, इट विल रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन इम्पीडेंस. तो वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन इम्पीडेंस क्या होता है, IZ होगा. अगर करंट ही कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम ही होगा. तो सी भी करेक्ट है. दैट मीन्स ऑल ऑफ द above is correct answer. So advantage of transmitting power at high voltage is reducing the magnitude of current, therefore the power loss will be less, that is your I square R power loss, and it will reduce the voltage drop in the line impedance. Okay, so that's the advantage of transmitting power at high voltage. Next is the voltage drop is the main consideration while designing a option A feeder, distributor, service main, all of them. So voltage drop मेन होता है कांस्टेंट करंट. ओके, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कांस्टेंट करंट होता है फीडर के लिए एंड वोल्टेज ड्रॉप किसके लिए होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मेन कंसीडरेशन होता है. ओके, एंड फीडर के लिए कांस्टेंट करंट. पहले फीडर आता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आता है. डिस्ट्रीब्यूटर से लोड टर्मिनल्स कनेक्ट होता है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से सर्विस मेन से आपके लोड्स. Next question is distribution transformer are designed to have maximum efficiency nearly at 100% of full load, 50% of full load, 25% of full load, 75% or 70% of full load. So the answer is D.
क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू द लोड टर्मिनल, क्योंकि यहाँ से लोड पर कनेक्शन मिलता है, ठीक है। तो और लोड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है। Loads are fluctuating in nature. So distribution transformer are designed to have maximum efficiency at 70% of full load. Okay. So अगर अब एक पावर ट्रांसफॉर्मर की बात होती तो पावर ट्रांसफॉर्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 100% ऑफ फुल लोड, क्योंकि पावर ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज 100% पे ही काम करता है, ठीक है, फॉर पावर ट्रांसफॉर्मर। एंड पावर ट्रांसफॉर्मर में मेन कंसिडरेशन क्या होता है, कॉपर लॉस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में मेन कंसिडरेशन क्या होता है, आयरन लॉस। क्लियर? नेक्स्ट इज स्ट्रिंजिंग चार्ट इज यूजफुल फॉर, ऑप्शन ए द डिजाइन ऑफ टावर, ऑप्शन बी डिजाइन ऑफ इंसुलेटेड स्ट्रिंग, ऑप्शन सी फाइंडिंग द सैग इन द कंडक्टर, ऑप्शन डी finding the distance between the tower. So stringing chart is used to find the sag in the conductor. तो सैग कैलकुलेशन के लिए स्ट्रिंजिंग चार्ट यूज होगा। तो बंडल कंडक्टर का यूज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन पे प्राइमरी किस रीजन की वजह से होता है, तो ऑप्शन ए रिड्यूसिंग द चार्ज इंपीडेंस ऑफ द लाइन, ऑप्शन बी टू रिड्यूस आई स्क्वायर आर लॉसेज, ऑप्शन सी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लाइन, ऑप्शन डी कोरोना लॉस। तो बंडल कंडक्टर का जो यूज होता है ये, ओके, तो टू रिड्यूस कोरोना लॉस द बंडल कंडक्टर आर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन। वो कैसे होता है, अगर आप बंडल कंडक्टर यूज करेंगे तो उसका जीएमआर इंक्रीज होता है, जियोमेट्रिकल मीन रेडियस इंक्रीज हो जाता है। तो अगर जीएमआर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू एक्स होता है। एक्स इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, ओके। तो अगर आप बंडल कंडक्टर यूज करेंगे तो उसका जीएमआर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। तो एक्स अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा तो कोरोना ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, ओके। सो बंडल कंडक्टर आर यूज्ड इन EHV line primarily for reducing the corona loss. The next question is the inductance of the single phase 2 wire line per kilometer get doubled when the, these are the options. तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्टेंस प्रोपोर्शनल टू ln GMD बाई GMR होता है, ओके। एंड इंडक्टेंस फॉर ए सिंगल फेज 2 वायर लाइन क्या होगा, 4 × 10⁻⁷ ln GMD बाई GMR हेनरी पर मीटर, और किलोमीटर में होगा तो 4 × 10⁻⁴ ln GMD बाई GMR। तो अगर आपको इंडक्टेंस को डबल करना है तो आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स इंक्रीज द स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस। तो पहले अगर डी होगा तो उसको आपको डी स्क्वायर करना पड़ेगा इंडक्टेंस को डबल करने के लिए, ओके। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। द इंडक्टेंस ऑफ द सिंगल फेज 2 वायर लाइन पर किलोमीटर गेट डबल्ड व्हेन यू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस। तो पहले अगर डी होगा तो उसको आपको क्या करना होगा, डी स्क्वायर बनाना होगा, फिर आपको इंडक्टेंस डबल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ ए लाइन इज प्रोपोर्शनल टू, तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग दैट इज SIL इज इक्वल टू क्या होता है, V² बाई ZC। ZC इज योर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ओके। एंड यू कैन राइट ZC इज इक्वल टू सर्ज इम्पीडेंस दैट इज L बाई C व्हेन R is equal to 0 and G is equal to 0. So SIL is your V² by ZC. So I can write SIL proportional to V². So it would be option C. The surge impedance loading of a line proportional to V². Next is under no load condition, the current in a transmission line is due to, option A corona, option B capacitance, option C springing reserve, option D backflow from R. So under no load condition, the current in a transmission line is due to capacitance of the line. That is your charging current, okay. Due to this charging current for medium and long line we have facing Ferranti effect, okay. Under no load condition or light load condition for a long line or medium line the receiving end voltage is greater than sending end voltage, okay, and the reason is charging current, and the phenomenon is called Ferranti effect, okay. What is Ferranti effect? Receiving end voltage is greater than sending end voltage. Under condition क्या होगा, कंडीशन होगा नो लोड और लाइट लोड,
ओके, तो Vs से कैसे ज्यादा होगा? ड्यू टू चार्जिंग करंट, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज फेरांटी इफेक्ट। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है, अंडर नो लोड कंडीशन द करंट इन ट्रांसमिशन लाइन इज ड्यू टू कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड चार्जिंग करंट। ओके, द रेटेड वोल्टेज ऑफ ए 3-phase पावर सिस्टम इज गिवन बाय, तो रेटेड वोल्टेज of a 3-phase power system is given by in terms of RMS, root mean square value, but in terms of line voltage. Okay, then we convert it to phase voltage for calculation purpose, but the originally rated voltage is RMS but line voltage, so option C is correct. Important question. Okay, the rated voltage for a 3-phase power system is given by RMS line to line voltage. Next question is, the sending end voltage for a 3-phase transmission line is 220 kV. That is, the Vs is your 220 kV. Then, the receiving end voltage at no load. तो ABCD पैरामीटर आपको गिवन है, तो हम लोग जानते हैं Vs is equal to AVR plus BIR होता है, and Is is equal to CVR plus DIR होता है। तो अंडर नो लोड IR क्या होगा? 0 होगा under no load. IR is 0. So if I put IR 0 here, then I'll get VR is equal to Vs by A, that is modulus A, and this VR is nothing but no load receiving end voltage. Okay, so आपको Vs given है 220 किलोवोल्ट and A पैरामीटर का वैल्यू भी आपको गिवन है, that is 0.9. तो अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 220 by 0.9 is equal to, तो आपको मिलेगा 244.4 किलोवोल्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिकल लेंथ ऑफ ए 50 हर्ट्ज 800 किलोमीटर लॉन्ग लाइन विल। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना होगा, जैसे कि V is equal to F lambda. B is your velocity of light, F is the frequency of the line, and lambda is your wavelength. So you can write lambda is equal to B by F, and B क्या होता है? Velocity of light, that is 3 into 10 to the power 5 किलोमीटर पर सेकेंड, and F हमारा है 50 हर्ट्ज। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? लैम्डा मिलेगा आपको 6000 किलोमीटर। Okay, so this is our first formula. Actually this is a little bit tough question. So lambda आपको क्या मिलेगा? 6000 किलोमीटर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आपको चाहिए बीटा। बीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो अगर आप लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1.046 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर रेडियन पर किलोमीटर। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल लेंथ, तो इलेक्ट्रिकल लेंथ कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रिकल लेंथ इज इक्वल टू बीटा इंटू द लेंथ ऑफ द लाइन। तो बीटा आपका है 1.046 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन पर किलोमीटर। तो इंटू आपको क्या करना होगा? 800 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करना होगा, तो उसके बाद आपको मिलेगा 0.84 रेडियन। ओके, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिकल लेंथ, ऑप्शन सी। तो आपको इस क्वेश्चन को ठीक से करने के लिए ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है? एंड दिस वन 3 फॉर्मूला, V is equal to F lambda, beta is equal to 2 pi by lambda, and the electrical length is nothing but beta into L. Clear? Next is, if the incremental cost characteristics of 2 units in a plant are given as IC1, IC2, the optimum sharing of load for total load of 200 megawatt. Okay, तो हम लिख सकते हैं अगर 2 लोड है तो P1 plus P2 कितना है टोटल? 200 megawatt. And the incremental cost characteristic of 2 units plant is given, and for optimal sharing, तो optimal sharing के लिए क्या होना चाहिए? IC1 is equal to IC2 होना चाहिए। तो अगर आप बिठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 6 plus 0.15 P2 plus 1. ओके, देन पॉइंट हटाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 60
यहाँ पे मिलेगा 1.5 P2 प्लस 10। ओके, तो नेक्स्ट आपको मिलेगा P1 माइनस 1.5 P2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 50 मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर इक्वेशन है, वो 1 नंबर इक्वेशन। अगर आप दोनों सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, P1 प्लस P2 आपको दे रहा है 200, P1 माइनस 1.5 P2 दे रहा है आपको माइनस 50। तो इससे आपको मिलेगा, अगर आप माइनस प्लस माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 2.5 P2, यहाँ पे मिलेगा 250। ओके, तो देयरफॉर P2 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 100 मेगावाट। तो अगर P2 100 होगा तो P1 क्या होगा 100 ही होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, P1 and P2 will be 100 and 100 megawatt for optimal sharing of load. Clear? Next is match the following and choose the correct option. Radial distribution, loop distribution and grid distribution. तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नॉर्मली लो डेंसिटी एरियाज में लगाया जाता है, लाइट एंड मीडियम डेंसिटी लोड एरियाज में रेडियल होगा। तो P और रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लाइट एंड मीडियम डेंसिटी लोड एरिया। लूप डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली सिंगल फीडिंग पॉइंट पे होता है, तो यहाँ पे होगा लूप डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एंड फॉर ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज फॉर लार्ज लोड, दैट इज योर ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहाँ पे लगाना चाहिए, जहाँ पे लार्ज लोड्स होगा। ओके, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपको लाइट एंड मीडियम डेंसिटी लोड एरियाज में, एंड लूप डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिंगल फीडिंग पॉइंट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू डिलीवर 600 मेगावाट, आपको कितना डिलीवर करना होगा 600 मेगावाट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइन विल बी मोस्ट सुइटेड, तो इनमें से कौन सा लाइन सबसे सुइटेबल होगा 600 मेगावाट को ट्रांसफर करने के लिए। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन पे जो लोडिंग होता है वो डिपेंड करता है उसकी सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग पर। ओके, दैट इज द आइडियल कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। सील क्या होता है, आइडियल कैपेसिटी, आइडियल मैक्सिमम कैपेसिटी बोल सकते हैं आप, आइडियल मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लोडिंग। तो अगर आप सब लाइन की सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लाइन ठीक है 600 मेगावाट को ट्रांसफर करने के लिए और सुइटेबल है। तो पहला जो ऑप्शन है दैट इज 400 किलोमीटर 400 kV सिंगल सर्किट लाइन। तो इससे पहले आपको 2 चीज जानना होगा। फॉर सिंगल सर्किट लाइन द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज 400 ओम, दैट इज फिक्स्ड। फॉर ओवरहेड लाइन और सिंगल सर्किट दैट इज इक्वल टू 400 ओम फॉर सिंगल सर्किट लाइक दिस लाइन। एंड फॉर डबल सर्किट अगर ऐसे चलता है तो इसका 400 होगा, इसका भी 400 होगा, दोनों पैरेलल में होगा तो क्या होगा 200 ओम होगा। एंड ZC इज इक्वल टू 200 ओम फॉर डबल सर्किट लाइन। ओके, so characteristic impedance for single circuit line is 400 ohm ideal and ZC dash for double circuit line it will be 200 ohm. Okay, and underground केबल के लिए कितना होता है 40 ohm, याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए के लिए सील कितना होगा, SIL इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ZC होता है। तो बी स्क्वायर इज योर 400 स्क्वायर क्योंकि 400 किलो वोल्ट है डिवाइडेड बाई ZC, ZC कितना होगा 400, तो आपको 400 मेगावाट प्रोवाइड करेगा। तो एज सील इज 400 मेगावाट लेकिन आपको भेजना है 600 मेगावाट, ठीक है, तो वो ज्यादा है तो ये सुइटेबल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या होता है 400 किलोमीटर 220 kV सिंगल सर्किट लाइन। तो सील 2 बी स्क्वायर बाई ZC, तो इसमें वोल्टेज लेवल है 220 kV, तो 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400, तो वो तो और इससे भी ज्यादा कम होगा क्योंकि 220 स्क्वायर, तो ए भी सुइटेबल नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, सील 3 बी स्क्वायर बाय ZC। तो इसमें क्या है 400 किलोमीटर 400 kV डबल सर्किट लाइन, तो 400 किलो वोल्ट, तो डबल सर्किट है इसलिए ZC कितना होगा 200 होगा। तो 400 into 400 divided by 200 it will give you 800 मेगावाट, जो किससे ज्यादा है
600 मेगावाट से ज़्यादा है, क्योंकि आपको भेजना है 600 मेगावाट। अगर आपका मैक्सिमम कैपेसिटी 800 मेगावाट होगा तो आप इजीली 600 को भेज सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज if voltage across 4 units of string insulator is 4 units of string insulator is the next question is if the ratio of phase voltage to the critical disruptive voltage is less than 1.8 then power loss due to corona at 60 Hz will be given corona loss for 50 Hz is 1 kilowatt per kilometer। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोरोना लॉस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है f+25 की। ओके, वो एक बड़ा सा फार्मूला है। तो नॉर्मली उसमें एक टर्म होता है फ्रीक्वेंसी का जो f+25 होता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो कोरोना लॉस भी इंक्रीज होगा। तो हमारे पास दो कंडीशन है, x 50 हर्ट्ज के लिए, x 60 हर्ट्ज के लिए। तो P2 60 हर्ट्ज के लिए, P1 50 हर्ट्ज के लिए। तो कितना होगा f2+25 f1/25। ओके, तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं P2/P1 दैट इज f2 इज यूज्ड 60 क्योंकि आपको 60 हर्ट्ज में निकालना होगा एंड P1 इज गिवन एट 50 हर्ट्ज। तो P2 आपको क्या मिलेगा 85/75 इंटू P1। P1 कितना गिवन है आपको 1 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। तो 85/75 आपको क्या मिलेगा 1.2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज अ ट्रांसमिशन लाइन इज मॉडल टू रिलेट सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड करंट एज VS IS द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द लाइन। तो आपको आउटपुट इम्पीडेंस निकालना होगा। तो जो गिवन इक्वेशंस है उनको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे ABCD VR एंड IR। इज इट करेक्ट? ओके, नाउ हमें निकालना है आउटपुट इम्पीडेंस। तो आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा that is VR/IR, that is receiving end voltage by receiving end current will provide you output impedance। तो इसके लिए इस इक्वेशन से हम लिखते हैं VR/IR is equal to क्या होगा ABCD इनवर्स होगा, क्योंकि अगर आप इसे यहाँ पे ले आएंगे तो वो इनवर्स हो जाएगा। तो क्या होगा VS एंड IS होगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है VR/IR is equal to ABCD inverse VS/IS। ओके, तो एक 2/2 मैट्रिक्स है, इसके इनवर्स क्या होगा। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, अगर इसको हम P मैट्रिक्स समझ ले तो मॉड्यूलस ऑफ P दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ P होगा एंड आपको यहाँ पे कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। अगर इसका कोफिशिएंट निकालेंगे तो क्या होगा D, इसका निकालेंगे तो A होगा, B एंड C, सामने एक माइनस होगा एंड ट्रांसपोर्ट होगा एंड बाकी सब सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे VR/IR होगा, यहाँ पे क्या होगा VS/IS। तो ये क्या है इनवर्स ऑफ ABCD। ओके, तो मॉड्यूलस कितना मिलेगा आपको AD माइनस BC, इट विल बी D माइनस B माइनस C A। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम कर दीजिए और कॉलम को रो कर दीजिए, कोई भी एक कर दीजिए तो हो जाएगा आपका ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है VS/IS और यहाँ पे मिल रहा है VR/IR। ओके, तो अगर हम इक्वेशन लिखे तो VR इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/AD माइनस BC DVS माइनस 1/AD माइनस BC BIS। ओके, इसी तरह अगर आप IR को लिखेंगे तो IR क्या मिलेगा आपको 1/AD माइनस BC कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे मिलेगा माइनस CBS प्लस A इंटू IS। ओके, तो हमने पहले ही कहा था कि आउटपुट इम्पीडेंस निकालना है, तो आउटपुट इम्पीडेंस कैसे होगा VR/IR करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप VR/IR करेंगे तो आपको मिलेगा VR/IR निकालना पड़ेगा। तो VR आपका क्या है, दोनों में देखिए 1/AD माइनस BC कॉमन है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या रहेगा DVS माइनस BIS डिवाइडेड बाय माइनस CVS प्लस A इंटू IS।
तो आप एक बार टैली कर लीजिए ऑप्शन के साथ, DVS माइनस CIS और BIS। हमारे ऑप्शन आए DVS माइनस BIS। DVS माइनस BIS पहले ऑप्शन में है। उसके बाद देखते हैं माइनस CBS प्लस AIS डिनोमिनेटर में है, तो माइनस CBS प्लस AIS। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Okay, thank you. Thanks for watching, and don't forget to subscribe and share with your friends.